Hello friends, myself CS Sangam Agarwal, and today we come with a new video. And today our special guest is CA Abhishek Rajaji, and he is a basically author, practicing chartered accountant, and uh, debater. He is a basically panelist who generally do debates in the different news channels. He is a very well known personality in our fraternity. He is not require any kind of introduction. So today I welcome Abhishek ji on this platform, and thank you very much to spare your valuable time for this video. And friends, I promise you that this video is going to be very important because today we are going to discuss impact of COVID-19 on our Indian economy, including about the economic package announced by our Honorable Finance Minister Madam and about the CS practice scope because at there is too many announcement for the MSME. So somehow the scope of practicing CA is also increased through that. And I found Abhishek ji the perfect mix of having knowledge of about the economy as well as for the CA and as well about the recent changes. So I found him the best personality to discuss on this matter. So I invite him in a very short while, and for his love and affection, he accepted our invitation and come on this platform. Abhishek ji, again I welcome you, and now let's start. I will not take much time. So Abhishek ji, we will make this as a discussion. So meanwhile, I will also ask some questions in between to you. So firstly, over to you. Start the Uh, deliberation. Greetings, Sangamji, and to everyone who is watching this video. Thank you. First of all, thank you for inviting me, and I will try my level best, but what best I can do. But Thank you. let's start with discussions. And we all know that COVID has impacted us a lot, and the way COVID has done and created issues with us, and our today we had seen our fourth lockdown extension. If we include 1 day lockdown for 20 seconds, so it's 15th until date. On 12th of May, uh, May, Prime Minister has announced a package of 20 lakh crore for financial assistance package to fight with the COVID. And Finance Minister has uh, made uh, certain discussions daily on 13th, 14th, 15th, 16th at 4 p.m. And today she discussed on morning 11 a.m. So there have been five details of this. And now the government is thinking of Atmanirbhar Bharat, self-reliant India movement. And they say that there are five areas where this has to be done: economy, infrastructure, systems, vibrant demography, and demands. Now, what this is, why they want to cater this, and for various sectors, they came with different type of plans. Especially, they said that we will be having emphasis on cottage industry, MSME, laborers, middle class industries, and other. So, whatever this package is or economic reform, Atmanirbhar Bharat discussion is, it can be break into three parts. First part is what has been offered to poor, say direct benefit transfer or say free distribution of grains. Second, what has been announced for MSMEs. And third is what is reform. So reform was basically announced on 16th, and for for we as a professional, we are more concerned with what has been announced with reforms and MSME. For us as a practicing chartered accountant, what has been announced with poor is not relevant for our professional practice, or not so relevant, but that is relevant only as a human being. For example, अब किसी गरीब को के खाते में मोदी जी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, या किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, या उन्हें फूड ग्रेन्स फ्री में मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमें तो उसकी अकाउंटिंग करनी नहीं, हमें तो उसको ऑडिट करना नहीं, सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। तो ये ह्यूमैनिकली हमें
इंटरेस्ट की बात है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल वी आर नॉट कंसर्न. वी माइट बी कंसर्न एज अ प्रोफेशनल. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो क्लाइंट है वो पीडीएस में आता है, उसका काम ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स है, उसकी इस तरह की राशन की शॉप है, वो मेरा क्लाइंट है. सो दैट कुड बी अवर कंसर्न कि भैया वो कैश ला रहा है, कैश जमा कर रहा है, करंट अकाउंट से कर रहा है, जैसे भी है, तो दैट कुड बी अवर कंसर्न, क्योंकि इस पीरियड में उसे कैश नहीं आएगा. अदरवाइज उसको कैश आता है, वो उसका डीडी बनवा कर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, दैट वे थिंग्स गो ऑन. सो दैट इज नॉट अवर कंसर्न. हालांकि इसमें दो वेस्ट बंगाल के केसेस आए हैं रिसेंटली, डबल ए आर के, वेयर selling goods to PDS is taxable and polishing of food grains is not taxable under GST. So that could be two areas which we would find relevance in our practice regarding distributions. Otherwise, we don't have direct interference of this part on our. Most of the things would be discussed on. Yes, sir. अभिषेक, जैसे आपने कहा कि बिफोर बिकम प्रोफेशनल वी आर ए ह्यूमन बीइंग्स, एंड being a human beings, when we saw the news channels and newspapers, people are moving and running, walking around 1,000 kilometers to reach their homes. That kind of statement somehow make us a very sad. So I think having support to the laborers, poor, somehow is very important in nowadays. So please also have special focus on those also, because in last 15 to 20 days especially, we are very much deeply saddened by this news that labor have moved out from cities to their villages, and they only have to doing walking, and then they are no convenience to reach there. This kind of things make all us very sad, because before professional we are also human being, and this kind of news make all of us sad. So kindly also give some emphasis over it, This sir. kind of news makes everyone sad. Yeah. But there are 2-3 areas how this could be targeted. So basically, if we classify public into 3 categories: a high class, middle class, and a low class. So what a high class wanted, for example, the Adani Ambanis, what they wanted policy changes, which the government has offered to them. They were facing problems with old labor laws that has been relaxed. For foreign companies coming from outside, they wanted land bank that has been offered. What middle class wanted? Middle class wanted a sort of tax breaks, more liquidity in their hand. What the poor wanted? Poor wanted a free direct cash benefit transfers कि कुछ उसके पास पैसा आ जाए. They also wanted food grains जो राशन से उन्हें फ्री में मिल रही है, उज्ज्वला का सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, एंड कि हमको हमारे घर छोड़ दो. Now the governments are arranging buses or arranging trains, and अभी तो चार्जेस नहीं लिए जा रहे. The state governments are bearing. And इनिशियली जब आप याद करें तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो आनंद विहार बस अड्डे पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी. कुछ दिन बाद बॉम्बे में भीड़ इकट्ठी हुई, सूरत में हुई, जगह जगह हुई, एंड दे वांटेड टू गो होम. बट इनिशियली बोला गया कि क्या जाने की जरूरत है, यू स्टे हियर, वी विल गिव प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम. लेकिन अब now government are arranging special trains, buses. ये पहले हो जाता. And you know, when we talk about this thing, so it becomes a political statement. And when I am in TV debates, so I handle these kind of discussions. I speak politically on my social media. I am very active on political things. But when I am addressing my fellow community members, so I usually try to avoid these kind of discussions, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कई बार आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो politically incorrect होती है, and then it goes against everyone. So yes, हम दुखी हैं, and everyone feels sad seeing such kind of things. एक फोटो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में घूम रहा था, person was calling and वो बिहार जाना चाहता था और 3 दिन से पुलिस उसे क्रॉस नहीं करने दे रही थी, और उसके बेटे की डेथ हो गई है. सैड. एक और वीडियो आया है, श्रवण कुमार की तरह एक पर्सन अपने
2 बच्चों को लेकर ट्रेवल कर रहा है। एक वीडियो आया जहां माँ एक बच्चे को सूटकेस पर लिटा कर खींच रही है, ड्रैग कर रही है। एक और न्यूज आई कि एक प्रेग्नेंट लेडी 150 किलोमीटर वॉक करने के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के कुछ घंटों बाद ही उसने फिर से वॉकिंग शुरू कर दी। So these kind of things makes everyone sad, but life goes on, and as it is said, show must go on. So हम सिर्फ दुख मना सकते हैं। गवर्नमेंट, वी कैन प्रेशराइज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दो तरह से प्रेशराइज होती है। either you come on roads and make a movement, जो कि लॉकडाउन में not advisable and not allowed also. Second is that you be active, be vocal. मोदी जी कहते हैं लोकल के लिए ग्लोबल बनो, be vocal. So if you feel that this is there something which is happening wrong, so आप उस पर थोड़े वोकल बनिए, सोशल मीडिया पर बोलिए। एंड अगर आप गरीब आदमी की बात करें, मजदूर की बात करें, तो सरकार भी समझती है। एंड वी हैव सीन दिस गवर्नमेंट एड्रेसिंग एवरी प्रॉब्लम। सो आई थिंक ये जो चीजें अटकती हैं, ये अटकती हैं बिकॉज वी हैव अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक सिचुएशन वेयर सर्टेन थिंग्स कि ये स्टेट को करना चाहिए, सेंटर को करना चाहिए, और ये समस्या खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी पैकेज की भी बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि साहब इस इंटरेस्ट में सब्सिडी क्यों नहीं दी, एमएसएमई को जो लोन दिया है इंटरेस्ट की सब्सिडी क्यों नहीं दी। तो माय क्वेश्चन है, इसकी इंटरेस्ट की सब्सिडी तो स्टेट भी दे सकती है। तो स्टेट कैन ऑफर इंटरेस्ट सब्सिडी, और स्टेट्स करती भी है हमेशा। इंटरेस्ट सब्सिडी ज्यादातर जो है स्टेट देती है, बिकॉज द पोजीशन तो सेंटर हैज टू लुक ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो स्टेट्स हैं दे एक्चुअली नो कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है और उनकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या शहर में क्या इश्यूज है। सो फॉर सेंटर, महाराष्ट्र एंड गुजरात, दे कुड बी फेसिंग सेम प्रॉब्लम, बट फॉर अ चीफ मिनिस्टर ग्राउंड लेवल पर देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, दे आर नॉट सेम। हालांकि कनेक्टेड है बट दे आर नॉट सेम। तो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो दे शुड प्रोवाइड सर्टेन टाइप ऑफ सब्सिडीज। तो वो वहीं पर जहां इंडस्ट्री को जितना नुकसान होगा वहां से बात होगी। सो ये जो कई बार क्या हम देख रहे हैं कि बसेस जो अरेंज करी जा रही है कि भाई अरेंज करके आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है, और दूसरी स्टेट के बॉर्डर पर वहां से सेकंड स्टेट का भी अरेंजमेंट नहीं है। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन स्टेट्स, and we had seen certain problems in our taxation also when we used to have VAT. So कहते थे कि VAT एक स्टेट मतलब एक कंट्री है, but when we move good from one state to another state, so it used to be like we are moving from one country to another country. So for taxation purpose also, for example, if you are moving goods from one state to another state, so for example मेरा जो फैक्ट्री है वो मानेसर में है and my godown is in Dwarka. So if I move goods from Manesar, which is Haryana, to Dwarka, Delhi, so then I have to pay taxes. I have to pay taxes. I have to generate e-way bill also. I have to do everything. So this is federal nature. अब हम कहते तो हैं one nation one taxes. GST is called one nation one tax. So we can have discussion on IGST कि भैया IGST का क्रेडिट एक स्टेट का दूसरी स्टेट में बिना उसके मूव क्यों नहीं कर रहा अगर हम ट्रांसफर नहीं कर रहे तो। और CGST इट कुड बी अलाउड, एक स्टेट का CGST है, वन नेशन वन टैक्स है, मैं मान गया कि आप SGST मुझे ट्रांसफर नहीं करोगे। बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड डन अ परचेज इन बॉम्बे, लोकल परचेज इन बॉम्बे, एंड नाउ I have another sale at Delhi. The goods are lying, Bombay goods are lying there and Delhi goods are lying here. So if I am selling from Delhi, तो मुझे वहाँ का CGST यहाँ adjust नहीं कर सकता. But that defies the purpose, one nation, one taxes. So there are certain limitations. This has to be dealt humanely. कि भैया इंसान है, इंसान की तकलीफ देख के दुख होता है. But more than that, we cannot do anything.
मैक्सिमम देखिए, अब हमारी जो सी इंस्टीट्यूट है, इट इज कॉल्ड पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, और देश में कभी भी कोई विपत्ति आई है, वी हैव बीन द फ्रंट रनर, फोर रनर। आज भी देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारी जो बाकी बॉडीज है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है? वी हैव डन इट। और जब जीएसटी आया था तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉ। इस पर सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी गवर्नमेंट की? किसने लोगों को जा जाकर समझाया कि भाई जीएसटी कैसे होता है? वी। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडीज चुप बैठी है, बट ये है कि ये मसला स्टेट लेवल पर ही बातचीत से हल होगा। वी प्रोफेशनल कैन ओनली रेज आवर वॉइसेस, दैट टू ऑन सोशल मीडिया, या आपस में बातचीत में एक बार डिस्कशन कर लें, एंड नथिंग मोर देन दैट वी कैन नॉट डू। सर मैं आपकी बात को मैं समरी करना चाहूंगा 2 पॉइंट्स अभिषेक जी। एक तो आपने कहा कि आपको कुछ भी गलत लगता है, आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ ठीक नहीं कर रही है, तो हमें उसके लिए वोकल होना चाहिए, और उसके लिए हमें अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इस बात को लेके आना चाहिए। एक तो आपने सर इसकी एडवाइस करी है, बहुत अच्छा है हम सब प्रोफेशनल्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको लगता है कोई भी चीज सही नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात को और लोगों तक पहुंचाएं। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। साथ में अभिषेक जी ने एडवाइस किया कि बहुत सारे मैटर्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे, कुछ स्टेट लेवल पे है, तो कुछ रिलीफ सेंटर ने दिया था, कुछ रिलीफ अब स्टेट्स को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उनकी जुरिडिक्शन आती है, वो उन एमएसएमईज को ज्यादा करीबी से, ज्यादा पास से उनको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उस हिसाब से फर्दर रिलीफ स्टेट्स को देने पड़ेंगे। आई थिंक अब तक हम इन दो बातों को कंक्लूड कर सकते हैं अभिषेक जी जी। जी 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 जी। प्लीज गो अहेड सर। So now we go for yesterday's press conference, जो 16th May को हुई, where finance minister has said that we are talking about reforms. So finance minister ने कहा कि जो हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, हम 8 कोर एरियाज में लेकर आएंगे। तो ये 8 कोर एरियाज कौन से थे? फर्स्ट वाज कोल, डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस में उन्होंने कहा वी आर रेजिंग एफडीआई लिमिट फ्रॉम 49 to 74%। मिनरल्स, एयरपोर्ट, एयर मैनेजमेंट एंड एमआरओ। एयर स्पेस मैनेजमेंट एंड एमआरओ मोदी वन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा प्लान रहा है, एंड दे हैड ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, लेकिन इसमें हमें सक्सेस नहीं मिला है, या वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर सक्सेस। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर कंपनीज की थोड़ी सी हालत खराब भी हो गई है, क्योंकि जो बेसिक कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो फैक्ट्रीज में ज़्यादा होता है, घरों में बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी at your residence, you would be having maybe 2 or 3 ACs. Vis-a-vis your office would be using a centralized AC. तो अगर सेंट्रलाइज एसी बंद पड़ा है तो कंजम्पशन ऑफिस की नहीं हो रही, तो कंपैरेटिवली वी यूज लेस पावर एट आवर होम्स। स्पेस, जिसमें उन्होंने कहा प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो जाएगी, एंड वी वुड बी शेयरिंग स्पेस विद प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो। एटॉमिक एनर्जी, इसमें अगर काम हो जाए देन वी कैन चेंज आवर लाइफ। एयरपोर्ट्स पर इसलिए भी काम करा जा रहा है बिकॉज धीरे धीरे अब आप देखिए पॉपुलेशन जो प्रेशर है वो एयरपोर्ट्स पर बढ़ता जा रहा है, एंड वी नीड न्यू रिवैम्प एयरपोर्ट्स। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और देखिए, एक एक रीजन ये भी है व्हाई दे वांट टू फोकस ऑन दीस एरियाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड वाइड एक माहौल बना है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और साथ साथ चाइना कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इस कोरोना वायरस के लिए। सो वर्ल्ड वाइड सबका ये मानना है कि दैट वी शुड मूव आवर इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना। अब वो इंडस्ट्रीज जब चाइना से मूव करेंगी तो कुछ ही कंट्रीज बचती है जहां वो पहुंच सकती है, क्योंकि जो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्केल ऑफ एक्सपेंडेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चाहिए, तो वो कुछ ही कंट्रीज के पास है। उसमें आता है वियतनाम, ब्राजील, रशिया एंड इंडिया। अब इन सब में 2 नेचुरल मार्केट बनते हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दोस टू आर ईदर वियतनाम और इंडिया। वियतनाम का जो प्लस पॉइंट है, यूएसपी है, दैट इज कि उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो हमसे 70% है, तो सॉरी 70% कम है, तो दे ऑपरेट एट 30% लेबर कॉस्ट व्हाट वी हैव।
प्रॉब्लम विद इंडिया इज, या यूएसपी ऑफ इंडिया, पहले यूएसपी की बात करते हैं. यूएसपी ऑफ इंडिया इज दैट वी हैव ओर्स, मिनरल्स. ये इनमें से किसी भी कंट्री के पास इतनी मात्रा में नहीं है दैट दे कैन ऑफर सच काइंड ऑफ कंपनीज, और कंपनीज कैन सस्टेन. प्लस आवर यूएसपी इज इंग्लिश, तो इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. प्लस अब आप फॉर एग्जांपल अब चाइना में काम करते हैं, so they have to understand Mandarin Chinese. They don't like to work in English. In fact, they don't allow Google also. Yeah, limited allowed है Google भी. So they have their own search engine Baidu. So वहाँ पर काम करने में मुश्किलें हैं. So that's why जो कल अनाउंस करे गए थे प्लान 16th को, तो उसमें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला that we have marked a land bank of around 5 lakh hectares, and this land is lying with SEZs. So we will offer this land, and we will ask the companies to come and choose the area where they want. कि इसमें से हम एक ऑफर करते हैं कि हमारे पास इतनी लैंड है, आप चूज कर लीजिए कि आप कहाँ फैक्ट्री डालना चाहते हैं. देयर विल बी सिंगल विंडो क्लियरेंस. फॉरेनर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे वांट लेसर कॉम्प्लायंसेस. अब रजिस्ट्रेशन के वक्त तो इंडिया ने कह दिया कि साहब आप कंपनी रजिस्टर कर लो. फॉर एग्जांपल कोई खास कॉम्प्लायंस नहीं है कि भैया फ्री में भी कंपनी बना देंगे, छोटी चार्जेस नहीं है, स्पाइस फॉर्म में ये वो. हालांकि आप खुद देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह फॉर्म में. लेकिन एक हर साल के कॉम्प्लायंसेस बहुत सारे डाल रखे हैं कि भैया डायरेक्टर की केवाईसी कराओ, कंपनी की एक बार आपने लोकेशन वेरीफाई करा दी, आपको क्वार्टरली ये बताना है, एमएसएमई का तो पैसा नहीं रोक रखा. ये बहुत सारे कॉम्प्लायंस डाल रखे हैं. फॉरेनर्स इनसे डरते हैं. दे डोंट वांट सच काइंड ऑफ कॉम्प्लायंसेस. एक डायरेक्टर का हर साल केवाईसी क्या आया कि मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आप दे दोगे, वीडियो भी तो नहीं चाहिए. एंड इफ यू डोंट गिव दैट ओटीपी देन द चार्जेस आर 5,000 रुपीज पेनल्टी. सो फॉरेनर्स इस सबको देखकर इस तरह सोचते हैं कि नहीं, इनके साल के कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि फॉरेनर्स यहाँ मूव क्यों नहीं करना चाहते. एक और प्रॉब्लम व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइना, व्हेन द कंपनीज थिंक ऑफ मूविंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री डल गई हरियाणा में, गुरुग्राम में एक एससीजेड है, समझ कर देखिए. तो गुरुग्राम में एससीजेड है, वहां पर उसने प्रोडक्शन करा. अब उसे शिप से भेजना है, पोर्ट से भेजना है. अब प्रॉब्लम क्या होगी, पहले वो लोड करेगा गाड़ी अपनी फैक्ट्री से, फिर वो दिल्ली आएगी, फिर दिल्ली से लोड होगी, मे बी वाया ट्रेन, द गुड्स वुड बी मूव टू एनी पोर्ट, गुजरात और समवेयर. फिर वहां से अनलोड होगी, फिर रीलोड होगी, या बॉम्बे भेज दी, मान ली बॉम्बे भेज दी सीधे ट्रेन से, तो अनलोड होगी, फिर वहां शिप में रीलोड होगी, और तब गुड्स, देन द गुड्स वुड स्टार्ट मूविंग आउटसाइड इंडिया. सो ये जो टाइम है ट्रांसपोर्टेशन का, we are yet to achieve actual benefits what is lying with us. So जैसे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जब आई थी, जो 6 साल रह कर गई, सो उन्होंने गोल्डन क्वाड्रेंगल बोला, और ये 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ दिया था बाय रोड्स. रोड्स पर काम चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है अभी बैक एंड पर. इट मे गिव फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बट द प्रॉब्लम इज वाजपेयी गवर्नमेंट जी का एक और प्लान था कि वो हिंदुस्तान की सारी नदियों को आपस में जोड़ना चाहते थे. और उससे क्या होता कि कहीं भी बाढ़ नहीं आती, बाढ़ जहां आती वहां पानी कहीं और भेज देते, जहां सूखा होता वहां पानी पहुंच जाता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा हो जाता बिकॉज डैम्स बनाने पड़ते हैं आपको. थर्ड, ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड स्टार्ट हो जाता, जो गुड्स का मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता. फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली से यमुना जी आगरा जा रही है, सो वी हैव, पहले हम पुराने रास्ते से जाते थे, नाउ वी हैव एक्सप्रेस हाईवे. लेकिन अगर हम किसी तरह यमुना जी को इतना क्लीन कर दें या उसमें इतना पानी ले आए कि हम बड़ा स्टीमर, बड़ा नहीं तो छोटा, कैन वी सेंड इट थ्रू बोट्स, गुड्स तो भेजे जा सकते हैं. सो दैट वुड हैव हेल्प्ड एंड दैट विल इवेंचुअली हेल्प अस. इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. यही काम चाइना ने कर रखा है कि आप चाइना में अगर आप
जो इनका एरियाज है जहां पर आप गुड्स बनाते हैं, जैसा मैंने सुना है, तो आप वहीं से एक ही छोटे शिप में आप लोड करते हैं और वही शिप, छोटा शिप पोर्ट तक ले जाता है, मेन पोर्ट तक, और वहीं से लोड हो जाता है। चाइना के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, जब आप उसके साथ बिजनेस करते हैं तो उनका जो डिफेक्टिव पीस का रेट है वो बहुत ज्यादा है। बट विद इंडिया डोंट हैव सच हाई डिफेक्टिव रेट, कि उनका डिफेक्टिव पीस का रेट 5% 10% तक भी पहुंच जाता है। विजा विज आवर्स इज लेस देन 0.5%। तो अगर किसी ने 1 लाख पीस का ऑर्डर दिया है, सो इफ एक्चुअली सेंड 1 लाख पीसेस, तो हो सकता है उसमें 500 पीस 600 पीस खराब निकला है। विजा विज चाइना में 5,000 से 10,000 पीस भी खराब निकल सकते हैं, किसी किसी केस में 20,000 पीस भी खराब निकल आते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन क्वालिटी। तो क्वांटिटी तो चाइना बहुत सस्ती बना के दे देता है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। दैट इज वन ऑफ द बेसिक रीजन कि अगर वो मूव करना भी चाहे तो दैट गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी कि वो वहां से मूव करना चाहेंगे। कोरिया उनको इतना वेलकम करता नहीं है, दे आर हैप्पी विद देयर ओन कंपनीज। सो दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। हमारे पास जो डिस्कशन था कि कुछ समय पहले तक, दैट वी हैव टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25, तो हो सकता है कोविड की वजह से इट कुड टेक टाइम, लेकिन अगर फॉरेन कंपनीज आ जाती हैं इंडिया में, वो फॉरेन कंपनीज जब आएंगी तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, and then we could become $5 ट्रिलियन economy by 2023, maybe 1 year before the target rate। लेकिन ये जो कंपनीज बाहर की आएंगी, इनसे आम सीए की लाइफ पे क्या फर्क पड़ सकता है? मैं इस पॉइंट को यही कवर करूं या बाद में कवर करूं सर? आगे क्या आगे क्या कर लेंगे विषय किस को? ठीक ठीक है। अच्छा, मैं इस साइड से दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर आपसे। जी सर। एक तो सर, जैसे एफडीआई इन्होंने डिफेंस के अंदर बढ़ाई है 51% से 75% कर दी। एक तरफ तो 74। 74। अब देखिए, जी। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे बेसिकली, और इधर यहाँ पे एफडीआई की परसेंटेज बढ़ाने से डिफेंस में कहीं ना कहीं उनकी बातों में बड़ा डिफरेंस आ रहा है एक तरह से। एक तरफ मेक इन इंडिया, एक तरफ आप एफडीआई बढ़ा रहे हैं आप डिफेंस के अंदर। Again you are asking me a political question। I would, it's a googly। अच्छा, चलिए, जब ओके। हम छोटे थे we used to hear made in India and we still see made in China, but now it is make in India कि आप बाहर से आइए, अपना लगाइए, and it is make in India provide us an employment। In fact we are talking about assemble in India also। वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है डिफेंस में। सो वी हैव, हमारी जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अपने लेवल पर काम करते हैं, हम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री भी हैं। वी वांट टेक्नोलॉजीज। सर्टेन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का ये व्यू है कि इसको ओपन कर दिया जाए, लेकिन देखिए जब आप इस पर बात करते हैं कि 100% स्वदेशी होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट भारत, तो व्हाट्सएप मैसेज बड़े अजीब से आते हैं कि BMW की बजाय महिंद्रा कर लो, राडो की बजाय चमटी पहन लो। सो इसका विजन ये नहीं है सेल्फ रिलायंट भारत का, इसका विजन है लोकल टू ग्लोबल, कि आप इसके लिए वोकल होइए कि हम महिंद्रा टेक्नोलॉजी बाहर से लाएं। तो कोई भी आदमी पैसा तो चाहेगा अपना, कि हम टेक्नोलॉजी ऐसी लाएं कि हम जाकर इस अपनी जो भी ब्रांड है उसको फॉरेन में भी बेच सके, हम इंडियन ब्रांड को बड़ा बना दें। जैसे हीरो होंडा का टाई अप था, so it was a merger with Hero and Honda। जब होंडा इंडिया में आना चाहता था तो उसने सबसे पहले एटलस को अप्रोच करा था। तो एटलस साइकिल बनाती थी तो दे रिफ्यूज कि हमें इंटरेस्ट नहीं बाइक बनाने में, एंड दे वांटेड अ इंडियन पार्टनर। फिर उन्होंने एक नीलम करके जो रिक्शा बनाता है उसको भी अप्रोच करा, एंड दे आल्सो रिफ्यूज। हीरो जो था उसकी साइकिल कोई खास बिकती नहीं थी हीरो की, और ज्यादातर वो ना बच्चों की साइकिल, ये ट्राई साइकिल होती है ना, उसमें ज्यादा सक्सेसफुल था। बट दे सेड ओके, यू आर ऑफरिंग अस, वी आर इंटरेस्टेड। सो उससे उनको क्या मिला, एक पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल गया, और उनके साथ टाई अप हुआ,
एंड अबास दोनों अलग अलग हैं. होंडा इज कमिंग सेपरेट, हीरो इज कमिंग सेपरेट. तो हीरो के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं हुई, तो फॉर टेक्नोलॉजी दे हैव अगेन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एल्स. बजाज कावासाकी भी कुछ ऐसा ही था. सो अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन में जाना है, लॉन्ग टर्म में जाना है, इट्स नॉट द टाइम कि हम आइसोलेशन में बैठे और कहें साहब हम तो अपना ही बनाएंगे. इट मे टेक टाइम. हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साइंटिस्ट कैपेबल नहीं है, बट इट माइट टेक टाइम. और टाइम हमारे पास है नहीं. और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टाइम किसी के पास नहीं होता. यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन. और इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और वो लोग आना भी चाहते हैं, बट दे वांट सर्टेन रिलैक्सेशन. तो जो मैंने 3 लोगों की बात करी, तो जो टॉप लेवल है उनको रिलैक्सेशन चाहिए कि आप पॉलिसी चेंज कर दीजिए, दैट वी कैन एक्सेप्ट मिनरल्स, वी कैन एक्सेप्ट कोल्स. तो मिनरल्स में, कोल्स में छोड़ना पड़ेगा. रॉयल्टी भी खत्म कर दी, बोले हम रेवेन्यू मॉडल पर चले जाएंगे. एंड देन दे फियर अबाउट लेबर लॉस, कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है और एक छोटा सा आदमी भी लेबर कोर्ट में चला जाता है, तो लेबर कोर्ट वाले सीधे डायरेक्टर को बुलाते, ऑथराइज सिग्नेचर ही सुनते नहीं. अब वो जापानीज डायरेक्टर सुनने को राजी नहीं. अगर कोई मान लीजिए जापान की कंपनी आती है तो वो डरता है कि नोटिस मेरे नाम का क्यों आ गया, मैं तो इस आदमी को जानता भी नहीं. देयर आर 10,000 वर्कर्स वर्किंग विद मी. सो ये जो डर है, तो इसके लिए आपको लेबर लॉस भी पॉज करने पड़े 3 साल के लिए. ये स्टेट्स ने किए हैं, बट दैट इज रिक्वायर्ड. सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं, वो कहते हैं ना एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है. सो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स सो कैपेबल कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम वर्ल्ड को डोमिनेट करें, विच वी हैड बीन डूइंग सेंचुरीज अगो. लेकिन वापस वही समय, इंडिया कैन रूल द वर्ल्ड, इंडिया कैन चेंज द वर्ल्ड, इंडिया कैन बी विश्व गुरु. दैट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विद अस. अभिषेक जी, आपने एक स्पेस के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कहती है कि उसके 5 लाख हेक्टेयर का उस पे स्पेस है जो जी अभी एसजेड के पास है, जी. और कंपनीज को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से अपना स्पेस वहां पे ले सके बेसिकली. यस सर. तो अभिषेक सर, मैं ये समझ नहीं पाया इसके अंदर कि ये रिलीफ पैकेज का पार्ट कैसे हो सकता है. वो लैंड तो ऑलरेडी एसजेड के पास थी, और पहले भी कंपनीज अलाउड थी वहां जाके अपनी अपनी एंटिटी, अपनी यूनिट्स खोलने के लिए. ठीक. तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा था इस चीज को. नहीं नहीं, देखिए व्हाट व्हाट हैज हैपेंड, कोविड के टाइम पर इन्हें कोविड का पैकेज देना था. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, कोविड से लड़ने के लिए पैकेज देना था. तो वो पैकेज जो देना था, वो तो 2-3 चीजों में इन्हें देना था. गरीबों को फ्री खाना दे दिया, पैसे ट्रांसफर कर दिए, हेल्थ बजट एलोकेट कर दिया, बाकी तो सीट्स को देखना है. एंड आपका मॉनिटोरियम पीरियड बढ़ा दिया और आपका थोड़ा सा डिफर करवा दिया. इंटर सब्सिडी स्टेट्स का काम है देना. लेकिन मोटिवेट भी तो करना है. इकोनॉमी तो खत्म हो गई. इकोनॉमी तो रिवाइवल लाना है, नहीं लाना. अब आप पिछला 1-1.5 साल देखिए, वी हैड बीन डिस्कसिंग लॉट अबाउट इकोनॉमिक स्लो डाउन और वेदर देयर इज ए रिसेशन. डिस्कशन का पॉइंट सिर्फ इतना था, वेदर दिस इज ए रिसेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन. अब कोविड की वजह से जब चलता चलाता व्यापार ही बंद हो गया है, तो अब तो प्रॉपर रिसेशन है. तो रिसेशन से बाहर लाने के लिए स्कीम अलग से लानी पड़ती, तो वो इसी पैकेज का पार्ट बना दिया. अब वो तो कह रहे हैं कि हमने आपका जो इनकम टैक्स रिफंड है वो भी हम दे रहे हैं. बट डिस्कशन में तो ये भी आया ना कि इनकम टैक्स रिफंड दे रहे हैं. तो यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट इज रिफॉर्म्स, एमएसएमई एंड दो पुअर के लिए जो काम करा है. तो ये रिफॉर्म्स का हिस्सा है, ये इस चीज का हिस्सा नहीं कि इससे कोविड से लड़ना है, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं. लेकिन अब ये मर्ज करके अलग से बोलते फिर दिक्कत आती, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ मोटिवेट भी करना होता है. एक मूवी है U571, शायद किसी ने देखी हो, व्यूअर ने, जहाँ डिस्कशन कर रहे हैं. तो उसमें होता क्या है, एक WWII की मूवी है कि सबमरीन्स में फाइट होती है, तो बार बार
अचानक में लोग आते हैं अपने कैप्टन से पूछने की सर ये हो गया अब क्या करें, तो वो हर बार आंसर देता है नहीं ये करो, नहीं ये करो, नहीं ये करो। तो सबको पूरी पिक्चर में आप देखेंगे कि वो बड़ा, आपको लगेगा यार बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत बढ़िया कैप्टन है और सब कुछ कर रहा है, एंड ही नोज एवरी आंसर। एंड में पता चलता है उसको कुछ नहीं पता था। एंड व्हाट ही डिड कि वो अपनी टीम को मोटिवेट रखता है कि कोई भी आदमी मुझसे क्वेश्चन पूछने आया तो मैं उसे खाली नहीं जाने दूंगा, और एंड में वो जीत भी जाता है। सो दैट्स द वे यू हैव टू मोटिवेट कंट्री। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी तो क्या है, डिप्रेशन में चले जाएंगे लोग। मोटिवेट भी तो करना है देश को। दैट्स व्हाई वी हैव अ डायनामिक लीडरशिप। सो ये बात आपकी ठीक है कि जैसे लोन देना भी कुछ लोग के, मैं भी उस व्यू का हूं कि भाई लोन देना तो पार्ट नहीं होता पैकेज का। पैकेज का पार्ट तो इंटर सब्सिडी है, बट यू हैव टू डू इट। इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। इन सिमिलर फैशन जैसे आपने टीडीएस के रेट कम कर दिए, आपने लिक्विडिटी को बढ़ाया, तो इट इज आल्सो नॉट अ रिलीफ। समहाउ हमें एडवांस टैक्स जमा करके या सेल्फ टैक्स जमा करके कहीं ना कहीं हमें टैक्स पे करना पड़ेगा लेटर ऑन। ठीक है, तो ये रिलीफ उस केस में हो सकती है कि जिसके अपने आपका रिफंड था, 1 साल बाद रिफंड आना था। इसका एक रीजन ये भी है कि व्हाट, देखो इसका एक रीजन ये भी है कि आप समझ कर देखिए, वो अगले साल रिफंड बढ़ जाता अगर वो सेम रेट रखते। फॉर एग्जाम्पल, संगम जी को एक मोबाइल फोन खरीदना था। संगम जी पे घर से प्रेशर था कि आपको अपनी कार अपग्रेड करनी है, टीवी भी खरीदना था, लेकिन अब वो सारे डिसीजन क्या हो गए, डेफर हो गए। तो जब इकोनॉमी खुलेगी so sales volume would be reduced, they would shrink. What about profit margin? तो पहले आप 30-40% में भी जीपी मार्जिन पे काम कर रहे होंगे, now the GP margin will be 20%, 15%। तो अगर आपका सेम रेट पे टैक्स कटता रहता तो आपका रिफंड बढ़ जाता। नाउ व्हाट दे अपडेट कि भाई आपके प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गए, उसी परसेंटेज में गवर्नमेंट मानकर चलेगी आपका 25% प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा या सेल्स वॉल्यूम कम हो गए। भाई कुछ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो देनी है, भाई स्टाफ सैलरी है, रेंटल है, ठीक है बढ़ाएगा नहीं बट कम थोड़ी कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, बहुत चीजें हैं, तो ये कुछ चीजें चलती रहेंगी। सो दैट्स व्हाई कि वो रिड्यूस करने से क्या हुआ कि आपके हाथ में थोड़ी सी लिक्विडिटी आ गई। तो दिस इज पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो जैसे हम फिस्कल पैकेज और मॉनेटरी पैकेज की बात करते हैं या फिस्कल डेफिसिट मॉनेटरी डेफिसिट की बात करते हैं, तो ये अगर आप इसमें गवर्नमेंट की कॉस्ट देखें तो गवर्नमेंट की कॉस्ट सिर्फ उतनी ही है इस सब में जितना वो पुअर और फार्मर्स वगैरह को दे रहे हैं। अदरवाइज जितना भी कुछ पैसा आना है वो बैंक से ही आना है, लोन के साथ आना है। हालांकि मुझे इसमें गवर्नमेंट की एक बड़ी शिकायत है कि जैसे अब टीडीएस है, ड्यू डेट्स बढ़ गई, सो द ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड कि भैया रिटर्न बाद में फाइल कर दो। सेम वे जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट्स हैज बीन एक्सटेंडेड, बट इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल। और 5 मई को भी तो ड्यू डेट थी ना, लॉकडाउन में कोई आदमी रिटर्न कैसे फाइल करता? उस समय तो 1/3 ऑफिस भी खुले हुए नहीं थे। अब तो 1/3 का बाद में आ गया कि भाई 1/3 ऑफिस खोल सकते हो, बट 5 मई को 1/3 ऑफिस की भी डिस्कशन नहीं था। सो इस तरह की स्थिति में आपके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है। दिस इज लिक्विड पैकेज टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन योर हैंड। इट हैज नथिंग टू डू विद मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेज। कोविड की वजह से जो इकोनॉमी में लॉस हो गया, बस आपके हाथ में कैश दे दिया, तो आपका प्रोबेबली एडवांस टैक्स लायबिलिटी उतनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी इनकम परसेंटेज, जीपी एनपी रेशियो कम हो जाएंगे। जी सर। गो अहेड सर। तो अब इसके बाद जब बात करते हैं हम एमएसएमई की कि एमएसएमई को क्या क्या बेनिफिट्स मिले हुए, देखिए सबसे पहले तो एमएसएमई समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं हिंदी में उद्योग आधार। सो आधार कार्ड की तरह आधार नंबर, ये उद्योगों को एक सपोर्ट देने के लिए, आधार मीन सपोर्ट ऑल्सो, सपोर्ट देने के लिए बेनिफिट दिए गए थे। बेनिफिट तभी होते हैं जब सबको ना मिले। अगर आप कुछ लोगों को कोई फैसिलिटी देते हैं तभी वो बेनिफिट है, अगर आप वो फैसिलिटी सबको दे देंगे तो वो बेनिफिट नहीं रहा। सो ये जो फैसिलिटी इनिशियल में थी दैट वाज ओनली फॉर द इंडस्ट्रीज।
manufacturing sector, and then service sector also became part of it. MSME का benefit ट्रेडर नहीं ले सकते. जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, क्या ट्रेडर्स का बेनिफिट ले सकता है? नो. सो ओनली इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे एंड सर्विस सेक्टर. वी शुड बी हैप्पी दैट सर्विस सेक्टर इज अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस. अब गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स थी कि लोग कर क्या रहे थे, अपनी कंपनी को एक लेवल तक रोक देते थे कि भाई हम इसके ज्यादा काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो एमएसएमई से बाहर हो जाएंगे. तो एमएसएमई यूजुअली गेट अ लोअर इंटरेस्ट रेट काइंड ऑफ थिंग. तो इसीलिए माइक्रो लिमिट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 25 लाख टू 100 लाख. सर्विस सेक्टर के लिए टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया. अदरवाइज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट वगैरह की लिमिट बढ़ाई गई है. अब बेनिफिट क्या दिया गया है इसमें कि 3 लाख करोड़ रुपीस का कोलेटरल फ्री लोन दिया गया. What is collateral free loan and why this was required? Collateral free loan इसलिए दिया गया कि बैंक को लिक्विडिटी तो पहले भी 3 लाख करोड़ की दी थी इन्होंने मार्च में, लेकिन बैंक ने लोन नहीं दिए. Why? Because बैंक fears कि ये पैसा मेरा डूब जाएगा, क्योंकि जब बिजनेस ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देगा ये आदमी. तो कोई भी आदमी पैसा ले रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा. तो उसके लिए गवर्नमेंट हैज कम विद कोलेटरल सिक्योरिटी कि भैया सिक्योरिटी हम कोलेटरल फ्री लोन की सिक्योरिटी हमारी होगी, गारंटी हमारी होगी, आप इनसे कोई असेट्स ना लें एज ए कोलेटरल और हम इसको कर देंगे, आप लोन दे दीजिए. लेकिन इसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दिया गया. ये जो एस्पेक्ट है कि भाई फॉर एग्जांपल 12% इंटरेस्ट पे बैंक देता है, तो उसमें एक आ गया कि भाई 4 साल में आपको वापस करना है एंड फॉर फर्स्ट ईयर कि भैया आपको सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करना है और अगले 3 साल तक आप किसका पेमेंट करेंगे, अगले 3 साल में इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का. तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि साहब कि भाई वापस तो करना है. लेकिन अगर आप लोन के एनपीएस देखें, आप सब बैंक ऑडिट्स में जाते हैं तो एनपीए 2 ही तरह के लोन होते हैं. या तो बहुत छोटा आदमी इसने बहुत छोटा लोन ले रखा है 10,000 20,000 का, ये तो वो एनपीए हो जाता है कि भैया उसके एसेट्स ही नहीं, यू कांट रिकवर दैट अमाउंट. या फिर बहुत बड़ा लोन एनपीए होता है कि भैया 1000 करोड़ का लोन है, 5000 करोड़ का लोन है, वो एनपीए होते हैं. या 500 करोड़ के भी लोन एनपीए हो जाते हैं. ये जो 20-50 लाख 10-20 लाख के लोन होते हैं ये एनपीए नॉर्मली नहीं होते, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास का आदमी लोन लेता है और मिडिल क्लास का आदमी ये कहता है कि भाई साहब मैंने लोन लिया है तो मेरा कमिटमेंट है and I will honor my commitment. ऑनेस्ट होते हैं, चाहे पर्सनल लोन लें या जैसे भी करके अरेंज करें, वो अपनी ईएमआई टाइम पे भर देते हैं. टाइम पे भी नहीं होती तो पेनल्टी कहीं से भी अरेंज करके, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा लोन चला गया एक तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी. सेकेंड, दे फियर अबाउट सिविल स्कोर्स ऑल्सो. पर्सनल सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है कि मुझे बाद में होम लोन लेना है तो मुझे मिलेगा नहीं. सो दैट इज ऑल्सो वन डेटरेंट और चेक पॉइंट. तो एमएसएमई को लोन देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, एनपीए भी कोई खास होते नहीं. इसमें एक 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट है जो उनके लिए है कि जिनमें पुराने लोन चल रहे हैं, जो एनपीए होने वाले थे, जिनमें पेमेंट्स की दिक्कतें आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई उनको भी लोन दे दो एंड वी विल कम विद इट, वी विल सपोर्ट देम. एक और काम इन्होंने करा है. अभिषेक सर, क्या हम इस पीपीटी को फुल पेज पे कर सकते हैं सर? फुल स्क्रीन आ जाता है? कर सकते हैं. थोड़ा व्यूअर्स को ना पढ़ने में दिक्कत आएगी, छोटा लिखा हुआ है ना इसलिए. नीचे नीचे ऑप्शन आता है सर. हाँ जी जी. सो एमएसएमई की डेफिनेशन तो ऑफ कोर्स चेंज हुई. एक और लोकल कंपनीज को बेनिफिट दिया गया है. उन्होंने कहा कि 200 करोड़ का विच एवर वुड बी अ टेंडर. तो पहले ग्लोबल टेंडर अलाउड थे, ग्लोबली आपको compete करना पड़ता था with the firms. Now they have said no, till 200 crore rupees अगर कोई टेंडर प्राइस है तो it would be only for the MSME. तो ये जो लिमिट बढ़ी है इससे MSME को बेनिफिट मिलेगा. They will get a new business or add-on business. EPF बहुत छोटे आदमी का उन्होंने कहा कि कंट्रीब्यूशन हम बियर कर लेंगे जहां पर 100 तक लोग हैं. एंड रेरा में उन्होंने थोड़ा सा आगे स्विच करा है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी. और
तो ये देखिए, जब आप ये गवर्नमेंट की पीपीटी है विच सेज 25,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस एंड टीसीएस, सो दे डोंट से, पॉइंट नंबर 14 अगर आप देखें तो दे डोंट से कि ये हमारे पैकेज का हिस्सा है, बट वो इसको जोड़कर बैठे हुए हैं। so, अब कैसे जोड़ा है दे ओनली नो। बट एमएसएमई में सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास आता है वो यही आता है कि हर आदमी पूछता है, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था तब से क्लाइंट्स के फोन आने शुरू हो गए, सर ये लोन कैसे मिलेगा। सो पहले तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि लोन कहाँ मिलेगा, किस सेक्टर में मिलेगा, पुरानी रिटर्न गई है नहीं गई है, पुराना कोई डेट तो नहीं चल रहा, व्हाट इज योर सिबिल स्कोर, एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और कि उसको लोन अरेंज करवा दे। पहले तो उसका उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाएं, if it is not registered, and then we can move forward. सर यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई किसकी कट ऑफ डेट है कि कब तक हमें उद्योग पे रजिस्टर करवाना है, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसी कोई डेट दी है? ऐसा कोई डेट नहीं है। इनफैक्ट लोन तो आपको बैंक से मिलेगा जिसमें आप रेगुलर चैनल्स में काम चल रहा है। सो अगेन दैट कम्स टू लाइसेंसिंग वर्क। ऐसा नहीं कि हर एक को लोन मिल जाएगा। तो अगेन आपको लेकिन फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आधार, उद्योग आधार में रजिस्टर करवाइए, एंड देन वी कैन अप्लाई फॉर लोन्स, एंड देन वी कैन गो अहेड। ये यहाँ तक स्थिति बनेगी, बट अगेन वी हैव टू सपोर्ट आवर क्लाइंट्स। सर यहाँ पे तो जो नए सीएस है या सीएस है, इनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है, वो अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी तो मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा था। देखिए, वी आर पार्टनर टू नेशन बिल्डिंग, तो हमारे साथ तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहेगी जब भी देश में कुछ होगा। और जब मैं बात कर रहा था कि भाई बाहर से कंपनीज आएंगी और एक जगह लैंड बैंक खड़ा होगा, वहां कंपनीज लगेंगी, तो कंपनी सब कुछ तो बनाएंगी नहीं। सो व्हाट विल हैपन कि जो छोटे छोटे उनको सपोर्ट करने वाले जो एंटिटी निकलेंगी, जो सो जो बिजनेस फॉरेन कंपनीज आएंगी, कंपनी लगाएंगी, तो उसके साथ साथ कुछ और कंपनीज भी उनको बाहर से काम तो कराना पड़ेगा। छोटा जो नॉर्मली होता भी है, मान लीजिए मारुति का मानेसर में प्लांट है, तो उसको सपोर्ट सर्विस देने में और बाकी सब देने में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। सो दोज वेंडर्स और दोज सर्विस प्रोवाइडर्स वो एक नॉर्मल सीए के क्लाइंट्स होंगे। जो बड़ी कंपनी है उसके तो क्लाइंट एक दो होंगे, लेकिन जो बाकी सब है उसके क्लाइंट्स तो एंड उनको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, कि उनको रेडी करना पड़ेगा कि दिस वुड बी द पॉइंट कि आपको इस तरह काम करें। जैसे हमने अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी अभी चेंजेस किए हैं, तो जैसे जैसे कंपनीज आएंगी वी हैव टू सपोर्ट आवर क्लाइंट, और उसके लिए रेडी करना है। और अगर हम बात करें कि लोकल को ग्लोबल बनाना, तो जो लोकल से ग्लोबल बनेंगी कंपनीज, उसके सीए तो हम ही होंगे। भैया आपका क्लाइंट अगर ग्रो करेगा तो सीए थोड़े बदल देगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा हो सकता है कि आगे चल के बहुत सारी सीए फर्म्स ग्लोबली compete कर रही हैं। तो ये जो एरिया है लोकल से ग्लोबल बनने का, ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ अगर अभी समय शेयर कर लें एंड यू प्रोवाइड देम द राइट इनपुट, देन यू कैन ग्रो फर्दर। अभिषेक जी, इसका एक पॉइंट नंबर 8 है आपका, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स अप टू ₹6750 करोड़। ये बहुत छोटे जो हैं जिनमें अप टू 100 वर्कर्स हैं, उनमें 90% ऐसे हैं जिनकी 15,000 से कम है, तो उसको गवर्नमेंट पे करेगी। ओके। तो वो
हमारा कोई क्लाइंट इस तरह का होगा तो देन वी हैव टू से कि भैया गवर्नमेंट से क्लेम कैसे लेना है या फाइल ना कर दे, नथिंग मोर देन तो दैट। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये नोटिफिकेशन तो फरवरी मार्च में आ चुका था ऑलरेडी नोटिफिकेशन ये नहीं, वाला। वो मार्च अप्रैल मई के लिए था, ये जून जुलाई हाँ, अगस्त के लिए। अच्छा, ये एडिशनल है उससे। ये जो हाँ, जो जो पहले जो स्कीम बताई गई थी मार्च में, उन्हीं स्कीम्स को आगे एक्सटेंड करा गया है। एक्सटेंड किया गया, ओके। हाँ, अभी जो हमारा ईएमआई मॉनिटोरियम पीरियड है वो एक्सटेंड नहीं करा गया। ओके। सो इसके अलावा बात होती है कि रिकवरी कैसे होगी इकोनॉमी में। तो रिकवरी इकोनॉमी में हो सकती है वी शेप हो, यू शेप हो, डब्ल्यू हो, नाइक के लोगों की तरह। तो वी शेप होता है कि साहब इकोनॉमी नीचे गिरी और एक इवेंट आया और इकोनॉमी सीधी ऊपर बढ़ गई। तो जैसे कोरोना वायरस से डर के लोग घर में बैठे हैं या खुद समझ के बैठे हुए हैं, एक तो शोष, इसकी दवाई अभी आएगी, टाइम लगेगा, मेडिसिन जो भी बनेगी। तो मेडिसिन भी दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट मेडिसिन जैसे पोलियो के लिए होती है, वैक्सीनेशन टाइप, कि आपने लोगों को दवाई दे दी, टीका लगा दिया, तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। एक तो ये होती है। दूसरी मेडिसिन होती है कि जो आदमी बीमार हो गया, जिसको कोरोना ने इम्पेक्ट कर दिया, आपने उसके लिए दवाई बना दी तो वो कोरोना से ठीक हो जाए। जैसे ही मान लीजिए अभी कल सुबह सुबह दवाई बन जाती है और बहुत सस्ते दामों पर अवेलेबल है और सबने इसको यूज कर लिया और इकोनॉमी भी नॉर्मल हो जाती है, तो इट इज वी शेप रिकवरी, जिसकी संभावनाएं कम है एट दिस मोमेंट। वी माइट बी हैविंग अराउंड 1 लाख केसेस। सेकेंड इज यू शेप रिकवरी, कि भाई एक बार नीचे चली गई, फिर कुछ दिन उसी पॉइंट पर रही एंड देन इट रिकवर्स। यू शेप रिकवरी जिसे आप भी देख रहे हैं, कुछ समय से आपका भी जो खर्चा है वो सिर्फ असेंशियल आइटम्स का हो रहा है, असेंशियल गुड्स आप खरीद रहे हैं। तो आपने जितने लग्जरी आइटम्स की परचेजेज है, कार की, बाइक की, घूमने जाना आपका बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, और मे बी कपड़े खरीदने थे वो भी स्टक पड़े हैं, और लोगों की जैसे सैलरीज कम हो जाएंगी या कुछ लोगों की जॉब चली जाएंगी, तो सरप्लस अमाउंट कम हो जाएगा। तो दे विल कीप ऑन बाइंग एसेंशियल गुड्स फॉर सर्टेन पीरियड। फिर जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और इकोनॉमी ओपन हो जाएगी, लोगों के पास नौकरी होंगी, देन इट विल स्लोली इट विल राइज। तो दिस इज डब्ल्यू शेप, वो यू शेप रिकवरी। देन कम्स डब्ल्यू शेप रिकवरी। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या है कि एक बार ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, डब्ल्यू। ये डब्ल्यू कब बन सकता है? जब फॉर एग्जाम्पल हमने एक बार लॉकडाउन खत्म कर दिया, या जैसे 1/3 ऑफिस पर 1/3 पर्सन के साथ आपको ऑफिस खोलना अब अलाउड है। तो कल सुबह मान लीजिए संगम जी और मैंने डिसाइड करा कि भाई अभी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, हम ऑफिस नहीं खोल रहे, लेकिन हमारे क्लाइंट का फोन आता है, भाई साहब काम करो, ये काम करना है। एंड संगम जी एंड मी से इसकी, नहीं भाई अभी तो हम लोग घर पर बैठे हैं, बट वो कहते हैं नहीं नहीं भाई काम तो करना पड़ेगा, ऑडिट खत्म करो, आप नहीं कर रहे तो मैं किसी और से कराता हूँ, क्योंकि सबने तो ऑफिस खोल दिया, आप ही घर डर डर के बैठे हो। देन यू एंड मी वुड बी फोर्स कि नहीं भाई लॉकडाउन में अभी तो हम घर पर बैठे हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे रखा, तो वी हैव टू गो टू आवर ऑफिस एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग आवर जॉब्स। और फिर भगवान अगर ऐसी स्थिति आए, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ी सी इकोनॉमी खुल जाती है और ऊपर डब्ल्यू की तरफ चली गई, लेकिन फिर कोरोना के नंबर इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अचानक में सरकार को ये कहना पड़ता है नहीं, वो जो एग्जम्पशन हमने दे रखी थी 1/3 की भी, और ऑफिस आप खोल सकते हैं नॉन एसेंशियल, वो भी हम बंद करते। और कल सुबह से संगम जी और अभिषेक राजा ही नहीं, जो बाकी लोग बाहर अपने ऑफिस जा रहे थे वो भी बंद कीजिए और घर बैठिए। एंड देन अगेन इट कम्स बैक, इकोनॉमी गोज अगेन। या कोरोना वायरस का दूसरा इंपैक्ट हो जाता है, जैसे चाइना में हुआ है कि चाइना ने एक बार अबॉलिश कर दिया, नाउ दे हैव अ सेकंड वेव, अब उनके नंबर फिर से बढ़ने शुरू हो गए। सो इट कुड बी। थर्ड इज नाइक लोगो। नाइक लोगो क्या होता है? ऐसे है
इंडिया में ये जो नाइक लोगो वाली रिकवरी बन सकती है, ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। हमारी इकोनॉमी पहले से ही रिसेशन में थी, कोरोना की वजह से बिल्कुल नीचे चली गई। अब अगर एफडीआई आकर पैसा डालें और इंडिया की इकोनॉमी एकदम तेजी से ऊपर जाए तो इट वुड बी दिस रिकवरी। तो जो टिक मार्क बनता है ना राइट का, तो वो रिकवरी। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ रिकवरीज, बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि इंडिया वुड हैव अ यू शेप रिकवरी। डब्ल्यू तो मुझे लगता नहीं, बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि सोशल डिस्टेंसिंग इज, वी हैव टू लिव विद कोरोना अनलेस वैक्सीन इज अवेलेबल, एंड वी हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। और आप भी देखिए, आप भी घर से बाहर जाते हैं तो यू टेक ऑल प्रिकॉशंस। आप भी किसी के पास खड़े नहीं होते, मजबूरी है जाना पड़ता है कई बार, एंड वी वुड बी मैनेजिंग। अब देखिए तो इसमें जैसे सीपी आवर्स है हमारे, अब सीपी आवर्स तो फिजिकली प्रेजेंट होकर करने पड़ेंगे ना। अब वो कुर्सी भी बहुत दूर दूर नहीं होती, पास पास रखी होती है। तो सीपी आप फॉर एग्जांपल सीपी आवर्स कैसे होंगे इस साल के कैलेंडर ईयर में, इस साल के कैलेंडर ईयर्स में जो हमें सीपी आवर्स करने हैं तो कैसे करे जाएंगे, क्या होगा, तो वो भी चीजें रहेंगी डिस्कशन में। तो बट उसके लिए मैं रिकवरी, ऐड करना चाहूंगा भी आईसीआई ने ना जो हमारे मैंडेटरी सीपीआर थे स्ट्रक्चर वाले, उसमें से 10 को उन्होंने डिजिटल सीपीआर भी कर दिया है बेसिकली। तो जो आईसीआई का डिजिटल हब है, अगर बाहर जाके कुछ कोर्स करते हैं या फिर यहाँ पे वहाँ सेशन लेते हैं, विजुअल सेशन लेते हैं, तो हमें 10 आवर्स मिल सकते हैं एडिशनली। तो माइट भी लेकिन आईसीआई और फर्दर इसमें हाँ स्टेप्स वो उठा रहा है। चाहिए तो 30 सर, हाँ बिल्कुल 30 चाहिए सर अभी। 30 चाहिए। इट इज 10 ऑल्सो तो एक्सपेक्टेड कि 10 तो अनस्ट्रक्चर्ड ले सकते हो आप। हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल बट व्हाट अबाउट सीपी स्टडी सर्कल्स, हम्म। व्हाट अबाउट सीपी स्टडी सर्कल्स? So usually what we used to do, we used to pay our fees in CP study circles, Yes. लोकेलिटी में जो अवेलेबल होते हैं आसपास, हम्म। या कोई स्पेशल स्टडी सर्कल्स होते हैं, या जैसे एनआईआरसी की मेंबरशिप ले ली एंड देन वी कंटिन्यू आवर स्टडी सर्कल्स। खैर आजकल तो वेबिनार्स में हमने ज़्यादा एजुकेशन ले ली है एंड यूट्यूब में, क्योंकि स्टडी सर्कल्स में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है कि भाई यही टॉपिक डिस्कस होंगे। विजा विज वेबिनार में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप प्लस माइनस करके कोई भी अलग सा टॉपिक भी ले सकते हैं। इकोनॉमी अगर हमारा नॉर्मल इकोनॉमी चल रही होती तो हमारे सीपी स्टडी सर्कल में या इकोनॉमी स्लो डाउन भी होता तो भी हम किसी स्टडी सर्कल में इकोनॉमी का डिस्कशन नहीं करते। वी वुड, इस पीरियड में हम ये डिस्कस कर चुके होते कि एक भाई 2-3 हफ्ते पहले तक हम बैंक ऑडिट्स का, भाई अप्रैल में बैंक ऑडिट्स का डिस्कशन कर चुके होते। इस समय हम आईटीआर में चेंजेस डिस्कस कर रहे होते। Yes. और उसके कुछ दिन बाद जो कंपनीज एक्ट में चेंजेस आए भाई उसके कॉम्प्लायंस कैसे करने हैं। बट अगेन इट गोस लाइक दैट। सो लैंड बैंक की हमने बात कर ली। सीए, अब नेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी को इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ भी हो जाए प्लस माइनस, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से पड़ता है। क्योंकि फाइनेंशियल्स का ऐसा कोई मैटर नहीं जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ना हो। एंड अब मेरे को एक कल बहुत दुख हुआ, एक रिनोन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बड़ा पोस्ट लिख दिया, ट्वीट कर दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिर्फ टैक्स के बारे में बात करनी चाहिए और इकोनॉमी की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमी के एक्सपर्ट नहीं। अब वो काफी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हें कुछ कहना भी सही नहीं लगता, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इकोनॉमी की समझ बड़ी डिफरेंट होती है इकोनॉमिस्ट से। जो इकोनॉमिस्ट समझते हैं वो सिर्फ इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती। वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा डेली का काम है एमएसएमईज को झेलना। हम कॉर्पोरेट के साथ भी कंसल्टेंसी में होते हैं, कॉर्पोरेट्स के भी कॉम्प्लायंस देख रहे होते हैं, प्लस जो ग्राउंड पर एमएसएमई काम कर रहा है वो भी समझते हैं। प्लस किसी एक चीज का टैक्सेशन इंपैक्ट क्या होगा वो हमसे बेहतर को नहीं जानता। तो हमसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट कोई और होता नहीं। अब हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया आज की डेट में, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन इसकी तैयारी तो कभी की नहीं थी, सोचा भी नहीं था।
हमने बहुत क्लाइंट्स के इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट में उनके डिजास्टर रिकवरी प्लान पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, लेकिन कभी हमने अपने लिए डिजास्टर रिकवरी प्लान बनाया ही नहीं, सोचा ही नहीं। आईसीआई पिछले 3 साल के जर्नल उठाकर मैंने देखे तो बहुत बार क्लाउड्स पर मूव कर जाओ इस पर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन मैंने खुद वो जर्नल में क्लाउड पर कैसे मूव करते हैं कभी पढ़ा ही नहीं, एक्सेप्ट जो इस समय पढ़ा है छुट्टियों में। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता था ऐसा तो कोई जरूरत ही नहीं, ऑफिस पास में है भाई, 15 मिनट की दूरी पर मेरा ऑफिस है, 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ, व्हाई आई शुड मूव टुवर्ड्स क्लाउड। लेकिन कोविड ने हमें खड़ा कर दिया कि सोचने पर कि भैया क्लाउड पे मूव करना है, एंड दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि अगर इस पर मूव नहीं करे तो फिर कैसे काम करेंगे। हमारी एक आदत रहती है, क्लाइंट के यहाँ फिजिकल विजिट करके ऑडिट कर दिया, सारे प्रिंट आउट लिए, टिक मारे, कुछ की आउटपुट लिया, कुछ सॉफ्टवेयर में डाला, बाद में कह दिया चलो भाई कुछ भेज देना डेटा। लेकिन अब मूवमेंट तो बंद हो गया, और प्रॉब्लम आएंगी। अभी इसको प्रॉब्लम को और डिस्कस करूंगा कि ऑडिट में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। संगम जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने आज लिया था मुझसे वो था प्रवासी मजदूरों का, कि जो चले गए वो कब वापस आएंगे। सर व्हाट अबाउट आवर स्टाफ? सीरियसली हमारे कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो घर चले गए, या कुछ पेड स्टाफ ऐसा होगा जो घर चला गया। कल को अगर वो आना भी चाहे, इट कुड बी पॉसिबल कि उनकी फैमिली ना आने दे, बोले सर नहीं नहीं भेज रहे हम। बिल्कुल हो रहा है मेरे साथ ऐसा सर, इट इज प्रैक्टिकली हैपनिंग विद मी सर। प्रैक्टिकली। सेकेंड, व्हाट अबाउट क्लाइंट? मान लीजिए क्लाइंट के पास 5 अकाउंटेंट थे, एक अकाउंटेंट चला गया, वो आया ही नहीं। अब ना तो वो दूसरा हायर कर रहा है ना वो, प्लस जब आप जुलाई में ऑडिट करने गए, फॉर एग्जाम्पल डेट तो अक्टूबर होगी, मैं कहता हूँ जी मान लो आप अक्टूबर का ऑडिट अक्टूबर में करने थोड़े जाओगे, सितंबर तक खत्म करोगे, जुलाई अगस्त में करोगे। आप ऑडिट करने जुलाई अगस्त में गए, अब अकाउंटेंट देखो पूरा साल खत्म करा है, पिछला तो पूरा ऑलमोस्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, 25 तारीख से लॉकडाउन है, तो 1 अप्रैल 2019 से 24 मार्च 2020 तक ऑफिस खुले, पूरे साल का काम हुआ है, लास्ट की एडजस्टमेंट एंट्री डलनी है। अब जब लॉकडाउन खुल जाता है, मैं मानता हूं कि 1 जून को लॉकडाउन खुल गया, अब स्थिति सोचकर देखिए 1 जून को लॉकडाउन खुल गया, अब अकाउंटेंट के पास कितने हैं, क्लाइंट के पास 5 की बजाय कितने रह गए, 4, और उसकी पेंडिंग रिटर्न भी पड़ी हुई है, पेंडिंग रिटर्न भी कंप्लीट करनी है जी, मार्च की, फरवरी की, अप्रैल की, ठीक। सेकेंड, व्हाट अबाउट योर स्टाफ? अब तो 1/3 स्टाफ से काम कर रहे हो, भी काम बढ़ गया, प्लस हर साल जब ऑडिट करने जाते हैं तब उससे 10-12 रिकंसिलेशन आपने उससे क्यों दे रही, भाई साहब ये एक्सेल मुझे बना के दे दो। इस साल हो सकता है वो भी हाथ खड़े कर दे कि सर 10-12 नहीं बना सकता, 5 ही बना पाऊंगा जी, बाकी आप देख लो, पॉसिबल है। इस बीच में अगर कोई नोटिस आ गया होगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉ, किसी भी चीज का कोई नोटिस आ गया, तो वो भी वो कहेगा कि सर मेरे पास तो स्टाफ है नहीं, आप ही हेल्प कर दीजिए। सो अब हम ये ऑडिट कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, भाई कम स्टाफ है, हमें घर से बैठकर काम करना। अब जो लड़का मान लीजिए आपका बाहर चला गया, अब आपको उसको भी तो काम कराना है, तो उसको काम कैसे कराएंगे? अब अगर आपको घर से बैठकर काम करना है, यू नीड अ पेपरलेस ऑफिस। अब हमारे ऑफिस तो पेपरलेस हो नहीं सकते, क्योंकि कई जगह लीगल डॉक्यूमेंट है, साइन करे हुए पेपर ही चाहिए, फिजिकल साइन चाहिए ना, हर बार डीएससी से काम नहीं चलेगा, स्कैन कॉपी हर जगह वैलिड नहीं है। हाउ वी विल डू इट? सो वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स लेस पेपर ऑफिस, कि लीगल डॉक्यूमेंट तो फिजिकल फॉर्म में, बाकी सारे हमें क्या होंगे, लेस पेपर ऑफिस। तो पेपरलेस, अ सॉर्ट ऑफ पेपरलेस, लेकिन ज्यादातर लेस पेपर ऑफिस। फिजिकल विजिट डिपार्टमेंट को देखिए, पहले तो होता था कि हम डिपार्टमेंट खूब घूमते थे, धीरे धीरे क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर ऑनलाइन, और से एवरी रिटर्न इज नाउ ऑनलाइन, अपील्स आर ऑल्सो ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन में काम हो जाता है। क्लाइंट के यहाँ पहले आप विजिट करते थे,
लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, स्टॉक टेकिंग करनी है, तो क्लाइंट के यहाँ जाना ही पड़ेगा, फैक्ट्री में जाना ही पड़ेगा. सो हाउ यू विल मैनेज दोस टाइप ऑफ थिंग्स? तो वो उस पर सोचना पड़ेगा हमें कि फिजिकल विजिट हम कितनी कम कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिड्यूस इट, बट वी हैव टू रिड्यूस इट. अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे कैसे? सबसे पहले इसको समझिए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बात तो बड़ी बड़ी हो गई कि भैया लोकल से ग्लोबल बन जाओ, लेकिन वो बनेंगे कैसे, इसको समझ कर देखते हैं. एक तो हमारे घरों में, जैसे हमारे बच्चों के लिए होता है, एक डेडिकेटेड स्टडी टेबल होती है बच्चे की, जहां पर उसका एक कंप्यूटर रखा होता है, बैठकर अपना होमवर्क करता है. सेम वे हमें भी एक वर्क स्टेशन अपने घर में अपने लिए बनाकर रखना होगा. भाई एक टेबल चेयर प्रॉपर सिटिंग के लिए, जहां आप 6 घंटे 8 घंटे बैठ सके, एंड अ प्रिंटर विद स्कैनिंग फैसिलिटी, लेटर हेड, स्टैम्प्स अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए आपको. तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई बिना इसके तो काम शुरू ही नहीं हो सकता. अब आपको क्लाउड और स्टैटिक आईपी एड्रेस पर बात करनी पड़ेगी कि आपको अपना जो डेटा है वो एक क्लाउड पर मूव करना पड़ेगा. ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत ज्यादा पैसे लेते भी नहीं. और होता क्या, हम अपना ऑफिस कैसे चलाते हैं, मैं कैसे चलाता था, मैं मेरे ऑफिस में एक कंप्यूटर है जो हमने हैवी सर्विस का ले रखा है, जिसको सर्वर बोल रखा है. वो एक फैट क्लाइंट है, और बाकी सारे जितने सिस्टम्स हैं वो थिन क्लाइंट है, कि भैया 10-15 सिस्टम अलग से लगे हुए हैं, वो उसमें सर्वर में कॉमन डेटा फोल्डर होता है, और वहां से आप अपनी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टेली, जीनियस, केडॉक, वेबटेल, कंप्यूटेक्स, whatever you might be using. इस तरह काम करते हैं. लेकिन अब कैसे करना पड़ेगा? सो वी हैव टू बाई स्पेस ऑन क्लाउड. और जो हमारा फिजिकल सर्वर रखा है, वो जितनी एप्लीकेशन फिजिकल सर्वर में, वो हमें कहाँ मूव करनी पड़ेगी? वी हैव टू मूव टू द क्लाउड. और वहां से एक स्टैटिक आईपी एड्रेस बनेगा, एंड देन ऑल सिस्टम्स लाइंग वर्ल्ड वाइड, जिसको भी आप पासवर्ड देंगे, दे विल बिकम थिन क्लाइंट, और वो वहां जाकर एक्सेस करेंगे. तब आप अपना सॉफ्टवेयर बिना ऑफिस जाए यहीं से एक्सेस कर पाएंगे. सो दैट्स द वे थिंग्स वुड मूव फॉरवर्ड. लेकिन इसमें आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, प्लस यू नीड अ गुड ब्रॉडबैंड कनेक्शन. हो सकता है किसी के घर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना रहा हो इस पीरियड में, और वो मोबाइल डेटा से चला रहा हो. could be possible, then we have to move towards a good broadband connection with a heavy duty one. अब अभी तक क्या होता था, अब मान लीजिए सबसे ज्यादा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारी फेटर्निटी में यूज होता है, दैट इज टैली. अब टैली का जो यूजर इंटरफेस है वो 80 से आज तक सेम है, और उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया. लेकिन कोविड ने हमें बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करा है. जो सैप R3 है, या उससे एडवांस वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट एनएवी है, बान है, इसमें क्या होता है कि आप जब कोई एक एंट्री पास करते हैं, तो साथ में स्कैन में, अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट अटैच हो जाता है. तो जब आप सैप वगैरह के थ्रू ऑडिट करने जाते हैं, तो आप जब एंट्री खोलते हैं तो फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक नहीं करने पड़ते. यू हैव, जैसे ईमेल में अटैचमेंट होता है, आपका अटैचमेंट होता है, आपने क्लिक करा तो अटैचमेंट खुल गया, एंड देन यू चेक द. अब आपको टैली से भी आगे मूव करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मूव टू सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल हो. सैप R3 तो हर कोई नहीं खरीद सकता, बट देयर आर अदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक Zoho, Busy, और QuickBooks. Marg is again one more software which is available with these kind of facilities. लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आप ऑडिट फ्रॉम सिटिंग इन योर ऑफिस, तभी आप कर पाएंगे. अब आप इसमें एक फायदा ये भी है कि जो आपका अभी तक क्या होता है, मान लीजिए जैसे संगम जी बैठे हैं ऑफिस में, या मैं बैठा हूँ, तो हमारी किसी ने कुछ टाइपिंग करी, तो वो या तो लैपटॉप लेकर अंदर आ जाता है, या हमें बुला लेता है, सर जरा मेरी सीट पर देख लो, मैंने लेटर टाइप कर दिया, देख लीजिए. अब वो बदल जाएगा. अब क्या होगा, हमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, कि गूगल डॉक या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में फैसिलिटी होती है कि जब कोलैबोरेशन में, कि मैंने एक फाइल खोल रखी है, द सेम फाइल इज ओपन इन योर सिस्टम, और हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं.
So we have to start doing those things. अब अकेले तो आप काम नहीं कर सकते, और कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है आप मूवमेंट भी कम करें. इट कुड बी पॉसिबल कि काम करने के लिए आपको अपने घर में ही एक ऐसा सेटअप तैयार करना पड़े जहां पर आपके 2-3 स्टाफ बैठकर काम कर सके, एंड दैट कुड बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. और अगर घर में नहीं कर सकते तो आसपास में कोई छोटी सी शॉप लेकर एक टेबल डालकर ये काम करना पड़ेगा. बट अगेन मूवमेंट, इफ द मूवमेंट इज नॉट अलाउड तो घर ही बैठने पड़ेंगे. लेकिन अगर घर में इतनी स्पेस नहीं तो आसपास में कोई छोटा सा मे बी सेटअप बनाना पड़ेगा. शायद घर पर बैठकर तो इतना काम नहीं हो पाएगा. मे बी वी वुड बी हैविंग वन मेन ऑफिस एंड वी वुड बी हैविंग अ क्वासी साइट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, जो बेसिकली डिजास्टर रिकवरी प्लान में होता भी है कि हॉट साइट, कोल्ड साइट, कि भाई हॉट साइट ऐसी है कि भाई आप कल सुबह से बैठे और शुरू कर दें. और अब ये कितना सक्सेसफुल होगा, एक वर्चुअल ऑफिस की सर्विसेज चलती थी या कोवर्किंग स्टेशंस चलते थे. मे बी हमें आसपास के कोवर्किंग स्टेशंस में काम करना पड़े या अपने लिए भी एक सीट लेनी पड़े कि भाई मेरा ऑफिस तो बहुत दूर है. मान लीजिए मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ और मेरा ऑफिस सीपी में है, मैं वैशाली में रहता हूँ, मेरा ऑफिस सीपी में, तो मैं सीपी तक जा नहीं सकता. पास से मेरा कोवर्किंग स्टेशन है तो मैं एक स्पेस उसकी ले सकता हूँ. बट अगेन कोवर्किंग स्टेशन में अगेन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी नहीं होगी, इट माइट हैव अदर रिस्क. तो एक बार जब इकोनॉमी खुलेगी रिस्क का होगा. और एक चीज और, जो पुराने टाइम में जितने भी आप देखिए 3+1 के नॉर्मल सेट्स होते हैं हम लोगों के पास. अब मिडिल क्लास फैमिली यूजुअली हैव सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट. 3+1 में होता क्या है कि 2 बाथरूम्स होते हैं या 3 बाथरूम्स होते हैं. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको घर से ही मैनेज करना है देन यू वुड बी रिक्वायरिंग वन एडिशनल बाथरूम, जो आप अपने स्टाफ को लिए छोड़ देंगे कि भाई स्टाफ इसको यूज कर ले या जो गेस्ट आ रहे हैं वो इसको यूज कर ले. सो मे बी जब कभी आप आगे जब घर मूव करें या शिफ्टिंग करें तो यू वुड बी थिंकिंग ऑफ कि भाई मैं ऐसा घर लूं जिसमें हर रूम के साथ एक अटैच बाथरूम हो. दैट कुड ऑल्सो बी. बाकी तो हमारी जो सीए फैटर्निटी कैसे मूव करेगी वो तो संगम जी, आप ज्यादा लोगों से मिलते हैं, लोग आपके भी ऑफिस आते हैं, आप भी लोगों के ऑफिस जाते हैं. सो यू वुड बी नोइंग व्हाट अ ट्रू सीए वर्किंग कल्चर इज. वो आपको ज्यादा पता होगी सर. तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी तो बेसिकली जो जॉब्स की बड़ी दिक्कत है, मतलब बिकॉज जो स्टाफ नहीं आ पा रहा है, और कहीं ना कहीं सीए भी कितना स्टाफ अफोर्ड कर पाएगा अभी आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज सीए की अर्निंग भी कहीं ना कहीं उसके क्लाइंट की अर्निंग से डिपेंड करती है. अगर बिजनेस इज डाउन चल रहे हैं अल्टीमेटली, तो सीए से मतलब वो बिजनेस हाउसेस भी कैसे सीए की फीस को अफोर्ड कर पाएंगे और कैसे टाइमली पेमेंट कर पाएंगे. और सीए भी कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम करते हैं, तो समहाउ स्टाफ की सैलरी भी अपने आप में एक बड़ा इशू है सीए ऑफिस के लिए, जो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा इशू बनने वाला है. और इवन मतलब मतलब सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे आल्सो वेरी big amount for the CA firm especially. So that is going to be a very big challenge in upcoming time. And let's see how the CA fraternity manage this thing somehow, because they cannot fire the employees also, because somehow they have to support their families also. तो बहुत सारे इश्यूज है अभिषेक जी, जो हमें सबको मिलकर देखना. एक चीज और भी है है दैट आईसीआई हैज कम विद द क्लैरिफिकेशन कि जो लॉकडाउन पीरियड है इसमें आर्टिकलशिप आपकी कंटिन्यूड मानी जाएगी. बट व्हाट अबाउट द स्टाइपेंड? That could be a big challenge. That is kind of somehow financial burden of the principal. Yeah. And that could be very high for certain CAs. Yes, agree. जिनके पास 50-100 आर्टिकल हैं फर्म में, या मान लीजिए 5 ही आर्टिकल हैं, और आज की डेट में आर्टिकल भी दे आर आल्सो अ सॉर्ट ऑफ पेड टाइप ऑफ गाय. और जब इनकम नहीं है देन हाउ वुड यू मैनेज? ठीक है, आर्टिकलशिप कंटिन्यू हो गई, एवरीवन अप्रिशिएट कि ठीक है बस ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी थी. बट अगेन अ पेमेंट ऑफ सैलरीज विद जीरो रेवेन्यूज और ऑलमोस्ट जीरो रेवेन्यूज इज अ बिग थिंग फॉर small and especially tier 2 and tier 3 cities. Especially city like Delhi can be manageable, but tier 2 and tier 3 cities are really very going to be very big drastic impact on the working of a CA firms,
without staff, less staff, how to manage. It is really a matter of concern which should be tackled very seriously, and some advisory should be issued for the institute level also, how to manage these things. See, one thing is already done by the institute, that now audit report can be signed through digital mode via DSC. Some of the good steps are also already taken by the institute, which are helping Once you have generated UDIN, yes, whether you physically sign or not, that hardly matters. Basic check तो लग गया ना Yes. with basic check तो लग गया once you have a say you have generated UDIN. बट अभिषेक जी, जैसे अब एक बहुत पुराना कल्चर चला आ रहा है कि एक लेटर होता है, इसमें साइन होता है, लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, उसकी वैल्यू क्रिएट होती है, तो दैट टेक टाइम टू गेट चेंज. वो वही मैं कह रहा था ना, लीगल डॉक्यूमेंट है ना वो, तो फिजिकल साइन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट ये नहीं है कि हम पेपर लेस ऑफिस होंगे, वी वुड बी मूविंग टू अ लेस पेपर. और इसी में जब हम घर से काम करने की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि एक प्रिंटर चाहिए विद स्कैनर एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो चाहिए घर पर, else you would not be able to do it. और लेटर रेट्स मान लीजिए खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, लेटर रेट्स खत्म हो गए तो प्रिंट तो हो नहीं सकते, देन यू हैव टू क्रिएट एंड थ्रू वर्ड, ऑप्शंस नहीं है. एनी अदर क्वेश्चन सर? आई थिंक यू हैव स्पोक वेरी वेल सर. आपने बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर किया. ऑल्दो पूरी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, कैसे वो उभर के आती है इन सब चैलेंजेस से, कैसे हम सीए कम्युनिटी इसमें इकोनॉमी की हेल्प करते हैं. बिकॉज एज यू सेड, वी ऑलवेज आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग. सो इन इकोनॉमी को उभारने के लिए कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना है. चाहे हमें खुद आज के डेट में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, पर कहीं ना कहीं हमें उस चीज को भूल के इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, जिससे कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से रन कर पाए, और कंट्री एक जितना कंट्री को नुकसान हुआ है उससे ज्यादा हम उसको फायदा करा पाए बाय डूइंग आवर बेस्ट एफर्ट्स. तो मैं इसी शुभकामना के साथ अपने सारे पार्टिसिपेंट को कहूंगा, आप अपना बेस्ट कीजिए और अपनी एक पॉजिटिव होप के साथ काम कीजिए. अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे. नहीं अभिषेक जी, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं बात, अगर बुरे दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन, पॉलिटिकल कमेंट से दूर रहूंगा. तो आगे और अच्छे दिन आएंगे, जिससे कि दोबारा से पॉजिटिव नोट से हम चीजें कर पाएंगे, दोबारा ऑफिस जाएंगे, दोबारा हम मॉल्स जाएंगे, ईटिंग आउटलेट जाएंगे, तो सब चीजें दोबारा से अच्छे से होंगी. बट वी नीड वी हैव टू स्टार्ट विद लिविंग द टाइम, कि जैसा टाइम चल रहा है उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं, अच्छे से बेस्ट वे में रह सकते हैं, कैसे अपना फाइनेंशियल प्लान करें आगे आने वाले टाइम का. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा ना हो कि अभी हमारा बड़ा एक्सपेंसिव नेचर है करने का, तो उसको हम कंटिन्यू करें. कहीं ना कहीं अपने आपकी जो ऑलरेडी सेविंग्स है उनको मैनेज करते हुए अपने आउटफ्लो को मैनेज करें. तो ये सब अपने पार्टिसिपेंट को मैं सलाह देना चाहूंगा. और थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, आप इस सेशन में आए और आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर करी, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें समझाया कि कैसे रिलीफ पैकेज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा. बाकी ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक इंटेंशन है कुछ अच्छा करने की. अगर सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करेगी, तो ये पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा. हम तो अपनी बेस्ट विशेस दे सकते हैं गवर्नमेंट को, एंड थैंक यू बोल सकते हैं गवर्नमेंट को. एंड थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए. थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच. आगे आपसे जो भी आपसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे. अभी एक दो टॉपिक्स और कराने हैं आपसे. यस सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.